वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग मेनी सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर वेरियस इग्नू कोर्सेज। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग द असाइनमेंट फॉर द सब्जेक्ट कोड BEGC 132 selection from Indian writing cultural diversity. Answer 5 questions in all. Question number 1 is compulsory. All questions carry equal marks. So these are few instructions. Let's start discussing question number 1. Explain with reference to the context any four of the following. So नीचे दिए गए parts में से कोई भी four explain करने हैं with reference to the context given. Let's discuss part A. I am neither among sinners nor among saints, neither happy nor unhappy. I belong neither to water nor to earth. I am neither fire nor air. I know not who I am. Let's discuss the answer. Reference discuss करें तो ये lines given है are taken from Kafi 7 by Bulle Shah. Let's discuss the context. Poet कहता है I know not who I am, nor I am or born of Adam and Eve. We only know our parents. हम सिर्फ अपने parents को जानते हैं but not God, जो हमारा original ancestor है, who created Adam and Eve, the progenitor. The logical reasoning for this ignorance, जो अपनी आइडेंटिटी के बारे में इग्नोरेंस है, इज थ्रू येट अनदर डिनायल. फर्दर पोएट कहता है आई बिलोंग नीदर टू वाटर नॉर टू अर्थ. मैं ना ही वाटर ना ही अर्थ को बिलोंग करता हूँ, मैं ना ही फायर हूँ और ना ही हवा. ह्यूमन बींग्स अवेयर हैं पांच प्राइम एलिमेंट्स के of the nature, which is air, water, earth, fire and space, but they go beyond five perceivable elements. तो इस कॉन्टेक्स्ट में 19th century इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ कहता है the soul that rises with us, our life star, hath had elsewhere its setting, but trailing clouds of glory do we come from God, who is our home. Heaven lies about us in our infancy. Let's discuss part B. Yam your earth, you the shelter of my secrets. The garden belongs to you. Come and enjoy it. What rival of mine lured your way? Let's discuss the answer. Reference की discuss करें तो ये lines ली गई हैं from Neither a Shadow nor a Reflection, which is composed by Naseem Shafia. Let's discuss the context. नफीन शाफिया कहती है कि एक विमेन इमोशनल है, पैशनेट है, डिपेंडेबल और स्ट्रांग होती है, that her belief in mankind has the power to inspire confidence in not only her man but also the entire society to treat their women folk with respect. सारी women जो mention की गई हैं इस poem में had the courage to move on when their husbands could not love them and treat them respectfully. जब उन्हें respect नहीं मिलती तो women easily move on कर पा रही हैं. We are made to think about complex issues. हम complex issues के बारे में सोचते रहते हैं like morality and society's expectations. The revenge एक solution नहीं है, for it cannot undo injustice. To be given her space, freedom and identity is women's right. Let's discuss part C. Two magic eyes with 100 charms have put my sad heart's rest to flight. Now who would care to go and tell, dear love, my sad and lonely plight? Let's discuss the answer. Context. ये lines ली गई हैं from Ghazal by their Amir Khusrau. Let's discuss the explanation. Speaker or the poet become one with the male lover. वो अपने male lover के साथ एक हो जाता है और complain करता है that the woman she had become forgetful of late. स्पीकर कहता है परहैप्स कि कुछ ऐसा है जो उसके माइंड में चल रहा है दैट एंगेजेस हर माइंड. द विमेन ने लूज कर दिया इंटरेस्ट अपने इमीडिएट सराउंडिंग में, लेकिन स्पीकर कहता है कि कम से कम वो अपनी आंखों से एक्सप्रेस कर सकती है सिंस इन सर्टेन सिचुएशंस आईज टॉक मोर एक्सप्रेसिवली दैन द टंग. This is in passing, however. Kuch dark nights do not come to an end because of the pain caused by lovers parting and the women cannot sleep. The women says, women कहती है, how can I spend dark nights of grief? The person is changing with the movement of ghazal. Person जो है movement of the ghazal के साथ change हो रहा है. Question can be raised why a thing has come to pass. इसमें poet answer करता है और answer को merge करता है with the women. The man lover sends no news nor shows his face. Moving on to part E. "'Tis the flame of love that fired me, 'tis the wine of love that inspired me. Wouldst thou learn how lovers bleed? Hearken, hearken to the reed." Let's discuss the answer. ये lines ली गई हैं from The Mad Lover by Cyrus Kumar Das. Let's discuss the answer.
to the explanation. These lines are taken from Rumi's poem. The Song of Reed and the first poem are known as the spiritual couplets of rhyming couplets of profound spiritual meaning. रूमी सिंबॉलिकली प्रेजेंट करता है रीड फ्लूट को एज द डिवोटी ऑफ गॉड, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है म्यूजिक का व्हेन इट इज कट फ्रॉम द रीड रेड बेड एंड रिप्रेजेंट्स ह्यूमन सोल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें म्यूजिक रिमेंबर करता है इट्स यूनियन विद द डिवाइन एंड लॉन्जिंग फॉर अ रीयूनियन आफ्टर इट्स सेपरेशन. Let's discuss the second question. What is the meaning of bhakti in Hinduism? How is the word used in the Bhagavad Gita? Why is the bhakti movement known as the socio-religious movement? Let's discuss the answer. भक्ति का हिंदुइज्म में मतलब होता है लव ऑफ अ डिवोटी टुवर्ड गॉड, गॉड के टुवर्ड एक डिवोटी का प्रेम. In the Bhagavad Gita में it connotates one of the possible paths of spirituality towards the moksha as in Bhakti Marg. अकॉर्डिंग टू भगवद गीता के हिसाब से जो भक्ति का रास्ता है और भक्ति मार्ग ये सुपीरियर है टू द टू अदर रिलीजियस अप्रोचेस, द पाथ ऑफ नॉलेज एंड द पाथ ऑफ रिचुअल एंड गुड वर्क विच इज कर्मा. भक्ति मूवमेंट की बात करें इन मिडिवल इंडिया, भक्ति मूवमेंट 8th सेंचुरी में केरला और तमिलनाडु इन साउथ इंडिया में स्टार्ट हुई थी. 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में स्प्रेड हुई और अपनी पीक पर अचीव हुई इन 17th सेंचुरी. भक्ति इंप्लाई करता है एक इमोशनल डिवोशन को टू वंस पर्सनल गॉड. भक्ति का मार्ग जिसका मतलब है पाथ ऑफ डिवोशन, ये एक स्पिरिचुअल वे है मोक्ष और लिबरेशन को अचीव करने का. भक्ति का अल्टीमेट गोल है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अ स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस. फॉर एग्जाम्पल कबीर ने अपने दोहा में प्रोफाउंड इम्पैक्ट किया और द भक्ति मूवमेंट, इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा कॉमन मैन के जीवन पर. कबीर दास का मैसेज ऑफ लव एंड डिवोशन ने बहुत मास अपील करी. अ कपलेट फ्रॉम हिज राइटिंग इज गिवन बिलो. कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेटेड हैं. सेंट पोएट का लिबरल आउटलुक रहा है और उन्होंने मैसेज में फोकस किया है डिवोटी के चॉइस पर ऑफ हिज एंड पर्सनल गॉड एंड द फ्रीडम, वर्शिप करने का फ्रीडम किसी भी तरीके से इन कॉन्सेंस विद देयर फुल डिवोशन. भक्ति मूवमेंट ने सोशल मैसेज दिया है अपने डिवोटीज को. भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुई साउथ से नॉर्थ एंड देन टू द ईस्ट. Let's discuss next question. Discuss the term unity of heritage and diversity of literature with reference to Indian literary history. How is the idea of unity in diversity expressed through Indian literature illustrate? Let's discuss the answer. Unity of heritage का मतलब है amalgamation of different heritage of India, means mixture of different heritages of India. This has been used in reference, ये Indian literature के reference में context में use किया है जो कि nature में diversified है. Diversity of literature imply करता है that Indian writings are written in different languages with different genres. India is a land of rich culture and heritage. India एक rich culture और heritage का land है जहाँ अलग अलग religion और culture के लोग साथ में harmony के साथ रहते हैं. It's a federal union with different languages, food, dress, belief and other cultural identities. इंडिया के दो फेमस एपिक हैं द रामायणा एंड द महाभारता, जो कि बैकबोन है इंडियन कल्चर के. रामायणा स्टोरी है लॉर्ड राम के बारे में जो 14 साल के वनवास पर रहे अपनी वाइफ और अपने यंगर ब्रदर के साथ, और इट ब्रिंग्स द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज टॉट टू द चिल्ड्रन बाय एवरी पेरेंट. ये हर बच्चे को सिखाई जाती है. साथ ही साथ महाभारता लाइट थ्रो करती है अपॉन द पॉलिटिक्स प्लेड इन एंशियंट टाइम. ये टीच करती है अबाउट द ड्यूटीज असाइन टू अस, हमारी ड्यूटीज के बारे में, और बताती है व्हाट विल हैपन फॉर द रॉन्ग डूइंग एंड सिंस दैट वी कमिट. इन द मॉडर्न एरा इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड जिसने इंडिया का कॉन्टैक्ट बताया विद द वेस्टर्न वर्ल्ड. दोनों हिंदू एंड मुस्लिम्स लिव इन हार्मनी एंड पार्टिसिपेट इन ईच अदर फेस्टिवल्स. गांधी जी ने लिखा our culture is a treasure house of such great values as hardly found in any culture. हमारा कल्चर बहुत ज्यादा ग्रेट वैल्यू से भरा हुआ है जो किसी भी और कल्चर में नहीं देखने को मिलता. Since independence onward, India themselves become increasingly keen to promote their sense of national identity for cultural unity and has been a revival of interest in indigenous folk art. Let's discuss next question. What is the alternative perspective that the Chandrabhati Ramayana offers and why is it important? Let's discuss the answer. Scholars agree करते हैं कि चंद्रभाती रामायण जो कि रामा स्टोरी retold by Bengali Hindu village women is incomplete. वो incomplete है.
इस रामायणा में रामा इज हार्डली विजिबल एक्सेप्ट इन रिलेशन टू सीता। द नरेटिव पैटर्न फॉलो करता है स्टोरी लाइन को अबाउट सीताज लाइफ। ये इंक्लूड करता है एपिसोड ऑफ सीताज लाइफ इंक्लूडिंग हर चाइल्डहुड, हर मैरिज, her life as an abducted woman, her pregnancy, exile, humiliation, and her entry into the Mother Earth. Meanwhile, Sata ne dekha ek dream that Lakshmi wanted her to deliver the egg to the wife of King Janak. She followed the divine instructions and delivered that of a Queen Janak. रामा के बर्थ को इसमें मेंशन किया गया इन द लेटर सेक्शंस। ये साथ साथ मेंशन करती है रामा के 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, द इविल कुकुया, बंगाली एंड संस्कृत टर्म फॉर इविल। लेट्स डिस्कस द इनसाइट्स। चंद्रपाति रामायण ने हेल्प किया है पेन ऑफ विमेन को रिलेट करने में। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है कि हर टेक्स्ट का एक अथॉरिटेटिव वॉइस होता है विच मेनी डिसेंटिंग वॉइसेस इमर्ज। चंद्रभाति रामायण डिफरेंट है इस सेंस में, और ये देती है सीता को स्टोरी टू नरेट हर लाइफ, हर प्रॉब्लम्स एंड हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो कि उनकी प्रॉब्लम्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर निर्धारित है। चंद्रभाति रामायण प्रोवाइड करती है एक ऑल्टरनेटिव विमेन सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू को, जिसको समझना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना रिलीजन के बारे में जरूरी है। We see an anguished and stricken Sita who suffers despite being innocent and blameless. We feel helplessness of a women. हम women की मजबूरियों को समझ पाते हैं। Let's discuss next question. Write a note on your understanding of literature from the Northeast region. Let's discuss the answer. The Bhakti movement, जो कि follow की गई by various reformist dispensations of the 19th century, colonialism and Christian missionary activities and the new culture of development caused cultural invasion in the Northeast. ये development ने different form of resistance और appropriations को lead किया in the region. द क्लैश ऑफ कल्चर रिजल्टेड, कल्चर के क्लैश से लॉस हुआ ट्रेडिशनल फॉर्म्स का और अडॉप्शन हुआ नए कल्चरल आइकन्स का, जिन्होंने थ्रेट किया एग्जिस्टिंग आइकन्स को। असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा, द कल्चरल इंटरमिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई लॉन्ग बिफोर द कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड। हिंदुइज्म के अलग अलग फॉर्म जैसे कि शैवा, शक्ता, वैष्णवा अलॉन्ग विद द बुद्धिज्म एंड इस्लाम स्प्रेड हुए अपने इन्फ्लुएंस से इन द रीजन। साथ ही साथ इसने लीड किया स्टैंडर्डाइजेशन को ऑफ असामीज लैंग्वेज एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ अदर डेलिकेट्स ऑफ द लैंग्वेज। लिटरेचर पॉलिटिकल हो सकती है। मेनी राइटर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ने ये कहा, सोशल, पॉलिटिकल और इंश्योरेंसी प्रॉब्लम्स एंड एथनिक क्लैशेस आर द थीम। ये मेन थीम है उनके काम का। ये प्रॉब्लम्स हिंडर हुई, इन्होंने डेवलपमेंट करी, डिस्टेबलाइज किया डेली लाइफ ऑफ द पीपल को। मेनी राइटर्स, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे राइटर्स ने इंग्लिश को यूज किया एज अ मीडियम, एक मीडियम को अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि इंग्लिश को अडॉप्ट करने से एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मेनी रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, द रिजल्ट ऑफ प्रेफरेंस फॉर इंग्लिश फॉर मीडियम स्कूल्स, दे वांट टू रीच आउट द वाइडर ऑडियंस। स्कूल्स में भी इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाने लगी और वो वाइडर ऑडियंस को कैप्चर कर पाए। English will also give their writings at wider exposure. English ने wider exposure provide किया through national and international readership. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.